Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akashvani classes. In today's video, we are going to start the second chapter of math, that is polynomials. This chapter was there in class 9th. We studied the basics there and now we are going to go a little advanced in this chapter. Okay, so we'll discuss the topics of this chapter and then we'll start the exercise. So in class 9th, we saw polynomials in one variable. We saw monomial having one term. We saw binomial having two terms, trinomial having three terms. Then we saw zeros of a polynomial. Then we saw the remainder theorem. We saw the factorization of polynomial and the identities was there. The lesson was very huge in class 9th, but in class 10th it is not that much huge. It's very short lesson and very easy also if you pay attention. Okay, so I will explain you in so detail so that you understand it properly. So just pay attention here. We are starting now and we'll just revise what we had studied in class 9th. We'll start with that and we'll then come what we are going to see in class 10th here. Okay, so first we'll start with the definition of degree. This is we have seen in class 9th. So that is, what is the meaning of degrees? The highest power of x in p of x is called the degree of the पॉलिनोमियल p of x. ओके, डिग्री का डेफिनेशन क्या कहता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x. किसका हाईएस्ट पावर? x का. x क्या है यहाँ पे? x इज द वेरिएबल. ओके, इन मैथमेटिकल टर्म व्हाट डू वी से दिस x एज? दिस इज ए वेरिएबल, द अननोन टर्म. ओके, इन p of x दिस इज व्हाट? p of x means this is the way we indicate a polynomial. Okay, polynomial को हम p of x, q of x, r of x इससे indicate करते थे class 9th में. Okay, remember that thing. So here it is an indication of polynomial and what is written in the bracket is x, which is the variable. जो bracket के अंदर लिखा है वो क्या indicate कर रहा है? That is the variable used in the polynomial. Okay, in class 9th we studied about polynomial in one variable and here in class 10th also we are going to study about polynomials in one variable only. एक ही variable होगा एक polynomial में. Okay, x हो सकता है, y हो सकता है, whatever, but एक ही variable होगा. Okay, so the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. means what? कि सपोज कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो उस x का जो हाईएस्ट पावर होगा, ओके, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पे एग्जांपल से हम कुछ समझेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, डेट इज़ 4x + 2. ओके, 4x + 2 इज़ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हैं कि x इज़ द वेरिएबल. ठीक है, अब x का पावर क्या है? यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे पावर कहाँ पे होता है? यहाँ पे. ओके, पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं. सो व्हाट इज़ द पावर हियर? हियर इज़ नथिंग रिटन. मीन्स यहाँ पे कितना पावर है? 1. व्हेन द पावर इज़ 1 वी डोंट राइट 1, राइट? हम 1 से लिखते नहीं हैं, मतलब यहाँ पे पावर है 1 और सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएबल है और कोई जगह पे नहीं है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में. मतलब हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 1 है. दैट इज़ द डिग्री इज़ 1 ईयर. ओके, द डिग्री इज़ 1 ईयर. देन let's look in this polynomial. It is 2y² + 3y - 4. What is the variable used here is y. Y is the variable. Now look here in this term, the power of this term is what? 2. Power of this term is 2, y². तो यहाँ पे पावर 2 है. यहाँ पे कितना है पावर? y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, डेट मीन्स पावर इज़ 1. ये तो कांस्टेंट टर्म है. तो अब यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कौन सा है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज़ 2. दैट मीन्स द डिग्री इज 2. ओके, देन थर्ड वन, दैट इज 2x⁵ + 6x⁵ - 3x⁴ + 2x + 1. So in this polynomial the variable is x again. The power here is 5, the power here is 6, the power here is 4, the power here is 1 and the power here is 0. That means here it is the constant term. So what is the highest power in this whole polynomial is? Here is the highest power. सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है. So the degree of this polynomial is 6. Okay, so simply the highest power of x, किसी भी particular polynomial में जो भी variable है उसमें जो highest power होगा that will be called as what? The degree of the polynomial. Clear? Okay. So now we are going towards the types of polynomials and the types of polynomials that we are going to see now is on the basis of their degree. डिग्री के बेसिस पे अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए. तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ क्लास 10th में, वहाँ पे 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है. दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल,
quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, was there in class 9th too. Linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So what information shall we know about linear, quadratic and cubic polynomial is, we must know about their degree, we must know about their standard form, their graph, number of zeros and examples, so that we understand what are the types of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial are. Okay, so starting with the degree. As we saw, degree is what? Degree is the highest power of the variable in a particular polynomial. Okay, so the degree of linear polynomial will be, liनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो रहेगा 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा 3. ओके, सिंपली इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर लिनियर पॉलिनोमियल का 1, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक का 2 और हाईएस्ट पावर क्यूबिक का 3 रहेगा. सिंपल, लिनियर मीन्स 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 एंड क्यूबिक मीन्स 3. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी का फॉर्मेट रहेगा, ax प्लस बी. नाउ हियर x इज व्हाट? x इज द वेरिएबल. x क्या है? वेरिएबल. What is a and b? A and b belongs to R. This is what belongs to a, b belongs to R. What is R here? R means real numbers. Okay, chapter 1 जो हमने पढ़ा real numbers. a and b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी. डेट मीन्स रेशनल भी हो सकते हैं एज वेल एज इरेशनल भी हो सकते हैं. ओके, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0. मगर a जो है वो 0 नहीं हो सकता. 0 के अलावा और कोई भी रियल नंबर होता है, बट a 0 नहीं हो सकता. क्यों a 0 नहीं होगा? क्योंकि a अगर जो 0 हो जाए तो ये वाला टर्म पूरा यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा ही नहीं ये टर्म. राइट, 0 इंटू एनीथिंग डेट मीन्स 0. तो ये टर्म ही जब निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक b, एक कांस्टेंट नंबर, एंड डेट विल नॉट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेर a b c बिलोंग्स टू वॉट? r. ओके, यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये a b c अगेन r है. और अगेन a क्या है? a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जो 0 नहीं हो सकता. 0 के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है. सिमिलरली क्यूबिक के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चारों के चारों रियल नंबर हो सकते हैं, मगर ए अगेन 0 नहीं हो सकता. तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने को. सिंपली आपको ए बी सी डी तो आती ही है, और यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो उसको सिर्फ डिक्रीसिंग फॉर्म में लिखना है. जैसे कि यहाँ पे डिग्री 1 है तो सिंपली x, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विद द वेरिएबल्स पावर 2 के बाद 1, फिर सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म. देन यहाँ पे डिग्री क्या है? 3, तो 3 फिर 2 फिर 1 एंड फिर नथिंग, और ए बी सी डी आगे लगा दिया सिंपली. ओके, अभी सपोज कि इसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है जो अभी फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री होता है 4, उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो क्या करेंगे हम? ए से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म का जो पावर रहेगा दैट विल बी 4. So that is ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. Okay, that is what the standard form of quadratic polynomial. But हमको अभी यहाँ पे नहीं देखना है, आपको ये तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे याद रखना है वो पता होना चाहिए. ठीक है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ में शो कर दे, उसके जो वैल्यूज़ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग हम उसका जो ग्राफ फॉर्म करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. ओके, वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसा रहेगा? दैट इज़ इन द शेप ऑफ पैराबोला. ओके, पैराबोला मीन्स इस तरह से शेप होगा. ओके, जैसे कि ये x है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है. दैट इज़ नॉट द मैटर, बट द शेप विल बी ऑफ लाइक दिस. दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहेगा? क्यूबिक के लिए समथिंग लाइक एस शेप का रहेगा. एस शेप, जैसे कि मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं तो सपोज़ कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो ऐसे हो सकता है, राइट, या फिर ऐसे हो सकता है. ओके, इस तरह से कुछ ग्राफ रहेगा. ये भी सिमिलरली ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स को क्रॉस करे ही. तो इस तरह से शेप रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ का. ठीक है ना.
Now number of zeros, but before looking at the number of zeros of these three types of polynomial, what is a zero called as? A real number k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is equals to 0. कोई भी एक नंबर है, सपोज कि कोई भी एक रियल नंबर है जिसको हम k से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, उसको हम ज़ीरो कब कहेंगे? एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का उसको हम ज़ीरो कब कहेंगे? जब हम यहाँ पे p ऑफ x यानी कि जो वेरिएबल है, ओके, जो भी पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल के जगह पे हम रखते हैं वो वैल्यू, ओके, वो जो नंबर है रियल नंबर उसकी वैल्यू रखते हैं, और जब हम उसे सॉल्व करेंगे और आंसर जो है ज़ीरो मिलेगा तो डेट विल बी कॉल्ड एज ए ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 6, ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 इज द पॉलिनोमियल. बट सपोज कि यहाँ पे मैं x के जगह पे, ओके, x के जगह पे मैं रखता हूँ 3, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2 इंटू एक्स यानी कि 3 माइनस 6, दैट इज़ 2 3 6 माइनस 6, व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर एज 0. मुझे आंसर क्या मिला? 0. तो कब मुझे ये आंसर मिला 0? जब मैंने x के जगह पे क्या वैल्यू रखी? 3. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 3 है, ओके, क्योंकि 3 रखने से मुझे आंसर 0 मिला. तो दैट इज़ व्हाट द 0 इज़. तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के कितने 0 हो गए? एग्जैक्टली 1 0 हो गए. सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, सिर्फ एग्जैक्टली 1 मीन्स ओनली 1. ओके, जैसे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के लिए 3 इज़ द 0. 3 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पे रखो आपको कभी भी आंसर 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है एग्जैक्टली 1, दैट इज़ 3. ओके, तो ऐसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका 0 ऑलवेज एग्जैक्टली 1 रहेगा. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आर एटमोस्ट 2. एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. ओके, 1 इज़ पॉसिबल, एक 0 हो सकता है, दो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 2 से कम होगा मगर 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा. सो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी 0 हो सकते हैं, मगर 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस आर 3, एटमोस्ट 3 जीरोस, 3 से ज़्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं है. 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मगर 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. तो सिंपली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितना डिग्री होगा उतना ही मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल सपोज कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री है 5, तो मैक्सिमम उसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे? यस, राइट, दैट इज 5 zeros will be possible there because the degrees are 5. सो जितना डिग्री उतना मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल रहेगा. ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो. √3x + 5, x - 2, 3z + 4. यहाँ पे सभी एग्जांपल में आप देख सकते हो डिग्री कितना है 1, और यहाँ पे ये जो भी नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे 2x² + 3x - 2, y² - 2, 2 - x². यहाँ पे भी ये तीनों एग्जाम्पल में देखो तो डिग्री कितना है 2. नाउ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 2x² + 4, √3x³ + 2 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे डिग्री कितना है 3. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट पॉलिनोमियल्स, बिकॉज एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज़ कि किसी के डिग्री के बारे में पूछ लिया, किसी के ग्राफ के बारे में पूछ लिया, किसी का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूछ लिया, या फिर किसी के नंबर ऑफ़ जीरोस के बारे में पूछ सकते हैं. सो ये आपको इन्फॉर्मेशन समझना है और अच्छे से याद रखना है, ठीक है. So now here we are starting the first exercise, that is exercise 2.1 of this chapter, which is very short and very damn easy. So here the question is the graph of y is equals to p of x are given for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. So here the polynomial is p of x. The polynomial is p of x means the variable here is x. Variable क्या यहाँ पे x. और ग्राफ की मदद से, ग्राफ को देख के हमको बताना है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में जो ग्राफ है उसके कितने ज़ीरोस है. ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, हर एक क्वेश्चन के पॉलिनोमियल की वेरिएबल क्या है x. यानी कि आपको यहाँ पे जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे आपका जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार क्रॉस कर रहा है, उसके बेसिस पे आपका आंसर मिलेगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ बनाते हैं हम, दिस इज़ द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वन,
the vertical is the y-axis, right? We write your x dash, y dash. Okay, this is the positive side, the dash side is the negative side. Here is the positive and this is the negative side. This O is the origin. Okay, this is the origin. तो आपको सिंपल ये देखना है कि वेरिएबल x है, तो ये जो ग्राफ है, दिस इज ऑल द ग्राफ. ओके, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ज़ीरोस होंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल है. तो मतलब ये x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. मतलब यहाँ पे द ज़ीरोस आर ज़ीरो, मतलब इसकी कोई भी ज़ीरो पॉसिबल नहीं है. Now going for the second question, here in the second question here is the graph. और इस लाइन को अगर हम देखें तो ये x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. so that is why the zero of this graph is 1. okay, the zero of this graph is 1. look at here in the third question, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को यहाँ से ऐसे 1 टाइम यहाँ पे क्रॉस किया. ओके, देन ये ऊपर गया, y एक्सिस पे क्रॉस कर रही है, वो काउंट हमें नहीं करना है. ओके, नीचे आई, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया सेकंड टाइम एंड देन वापस ऊपर गया, डेट इज़ थर्ड टाइम यहाँ पे क्रॉस किया. तो डेट मीन्स यहाँ पे कितने ज़ीरोस है? 3. द ज़ीरोस ऑफ दिस ग्राफ इज़ 3. नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ ट्राई बाय ओन. फोर्थ एंड फिफ्थ कुछ ट्राई बाय ओन नहीं है, अभी आप फटाक से आंसर बोल ही दिए होगे. ओके, तो ये खुद से कर लो. सिक्स्थ वन में क्या है? सिक्स्थ वन में यहाँ पे ये जो ग्राफ है 1 टाइम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, नाउ लुक हियर, सेकेंड टाइम ये जब आई है यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस को नीचे क्रॉस करके ऊपर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है और ऊपर चले जा रही है. ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसको हम सिर्फ 1 ही काउंट करेंगे. यहाँ पे ये इस तरह से थोड़ा सा भी ये नीचे आके इस तरह से जाता तो इसको हम टोटल 2 काउंट करते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टच ओके ऊपर जा रहा है, दैट इज़ यहाँ पे ये एक ही है, इस 2. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी सिर्फ टच होकर जा रहा है, दैट इज़ यहाँ पे इट इज़ 3. so that is 3. the zero of this graph is 3. okay, so here we completed this exercise. Now the next topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Again a important topic here, on which exercise 2.2 will depend on. How to do exercise 2.2 depends on these things. Now what information I have written here is for linear polynomial p of x is equals to ax plus b. हमने देखा linear polynomial का standard form है ax plus b. ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट यानी क्या, x का कोएफिशिएंट है a और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट, जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका अगर हमको डायरेक्टली ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए करेंगे. यहाँ पे b क्या है? b इज़ द कांस्टेंट टर्म और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x. तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू, दिस इज़ फॉर ओनली लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही ये वैलिड है. माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कॉन्स्टेंट टर्म एंड अपॉन ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, सिंपली याद रखना है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. जैसे कि एग्जांपल में सपोज के हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 3x माइनस 9. ओके, 3x माइनस 9 इज आर लीनियर पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है. तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे ये है ए, इसके साथ कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ पे हमारा b क्या है, b इज़ आर माइनस 9. सो यहाँ पे तो ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है और ये जो b की वैल्यू माइनस 9 अपॉन a की वैल्यू 3. सो क्या होगा, यहाँ पे बाहर जो माइनस है अंदर वाले माइनस को कैंसिल करेगा और हमारे पास आएगा 9 अपॉन 3. एंड व्हाट इज़ 9 अपॉन 3 इज़ 3 1 3 एंड 3 3 9. सो वी विल गेट द आंसर एज 3. तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ज़ीरो कितना है, 3. जैसे यहाँ पे रखो, आप चेक कर लो, यहाँ पे x के जगह पे 3 रखते हैं तो 3 3 9, 9 माइनस 9 0. ओके, तो इस तरह से हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे. नाउ सेकंड इज़ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c. अगर
जैसे कि हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एट मोस्ट 2 ज़ीरोस पॉसिबल है। तो सपोज़ कि वो 2 ज़ीरोस है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ओके, अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम अल्फ़ा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे, जिससे हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं 2 ज़ीरोस को। ओके, कोई भी वो 2 ज़ीरोस हो तो उस ज़ीरोस का यहाँ पे क्या रिजल्ट है, सम ऑफ ज़ीरोस मीन्स सम मीन्स एडिशन एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सम ऑफ ज़ीरोस मतलब जब वो 2 ज़ीरोस को हम ऐड करेंगे, दैट इज इफ वी डू अल्फा प्लस बीटा, व्हाट वी विल गेट इज माइनस बी अपॉन ए। ओके, द सेम थिंग विच वी यूज देयर, but here we will get the value of the sum of the zeros. So alpha plus beta is equals to minus b upon a. For this quadratic polynomial, what is b is the coefficient of x, and what is a is the coefficient of x square. So minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, this is the sum of the zeros. This is one result. This also you have to remember. And for product of zeros, the formula is alpha into beta. Okay, there is no sign between alpha and beta, that means the multiplication. So alpha beta is equal to c upon a. Okay, alpha plus beta is minus b upon a, and alpha beta is equal to c upon a. What is c here? C means the constant term, and what is a here? A is the कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, रिमेंबर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है. ओके, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा के सॉल्व करते हैं, जो आपको नहीं करना है. यहाँ पे c अपॉन a that is the product of zeros, and here is minus b upon a that is the sum of the zeros. Okay, so this is for linear polynomial and this is for quadratic polynomial. Now we will see about the cubic polynomial. So now let's look for the cubic polynomial. For cubic polynomial, p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. If alpha, beta and gamma are the zeros, then cubic polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमने देखा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है, वी सॉ इट हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोस. ओके, तो वो 3 जीरोस अगर हम एज्यूम करते हैं कि दे आर अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस. दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज 3 एज बीटा एंड दिस इज गामा. ओके, ये 3 जीरोस है एक पर्टिकुलर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के. ठीक है, तो उनका कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी. तो फर्स्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जब हम तीनों जो ज़ीरोस है उसका सम करेंगे, वो तीनों को ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, व्हाट इज बी ईयर, बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, बी किसका कोएफिशिएंट है, बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो माइनस coefficient of x square upon a. What is a here? A is the coefficient of x cube, so coefficient of x cube. Okay, this is the first result. Now the second is alpha beta प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. ओके, पहले अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फ़ा. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू c अपॉन ए. इट इज इक्वल टू c अपॉन ए. व्हाट इज c हियर, c इज द कोएफिशिएंट ऑफ, in this cubic polynomial it is the coefficient of x, so coefficient of x upon what is a here, a is the coefficient of x cube, so coefficient of x cube. Okay, then the third is the product of all the 3 zeros. जब तीनों जो zeros है उसको जब हम multiply करेंगे, so that will be equal to what, alpha into beta into gamma is equals to minus d upon a, and that is equals to what is here, minus, so minus d. What is d here, d is the constant term, so constant term upon a. What is a here, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है. तो बहुत ही सिंपल है ये, यहाँ पे ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं. इस सिमिलर ही है जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखा, उसी से रिलेटेड ये है, उसी के बेसिस पे आपको ये याद रह जाएगा. जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, वही सेम चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है. ओके, देन वी सॉ अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या देखा हमने, c अपॉन ए. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे तो डेट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c अपॉन ए आएगा. ओके, एंड वन थिंग एक्स्ट्रा है, डेट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. तो ये आपको ये याद रखना है. ठीक है,
So now we are starting exercise 2.2 and the very first question is find the zeros of the following quadratic polynomials. We are given quadratic polynomials और उसके हमको zeros find out करने हैं, ओके और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. जो रिलेशनशिप अभी हमने जस्ट देखा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, वो भी यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले तो हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर वी हैव दिस p of x इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का हमको करना है फैक्टराइजेशन यहाँ पे, ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. हमको यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन करना है. तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1 to 1, ठीक है. देन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये रफ वर्क है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -8. सो 1 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल्स टू -8. अभी -8 के हमको दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम या जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो मिडिल टर्म में जो नंबर है उसके इक्वल में आए, ठीक है. तो देखो अभी समझते कैसे करेंगे. जैसे कि यहाँ पे -8 है. अभी किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक माइनस वाला हो. यहाँ पे हमको प्रोडक्ट चाहिए -8, मतलब ऐसे दो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं जिसमें एक प्लस वाला रहेगा और एक माइनस वाला रहेगा और उसका प्रोडक्ट हो -8. तो यहाँ पे 8 यानी 8 वी कैन राइट इट एज 2 4 the 8, राइट. वी कैन राइट 2 4 the 8, 2 4 the 8. मगर यहाँ पे एक नंबर कोई माइनस वाला रहेगा, ओके. या तो 2 को रखो, -2 4 the -8 ही होता है, या फिर 2 into -4 करो तो भी -8 ही होगा, ओके. बट इसी के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसका सम या डिफरेंस जो है मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए. मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, -2. तो यहाँ पे 2 -4 करते तो कितना होगा, 2 - 4 इज़ -2. तो यहाँ पे हम इस 2 को प्लस रखेंगे और 4 को माइनस रखेंगे. तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, मगर इस -2x को मैं स्प्लिट करके क्या लिखूँगा, आई विल राइट इट एज +2x - 4x, +2x - 4x -8. यहाँ पे इस -2x को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है. ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ये -2x को मैंने क्या लिखा, +2x - 4x. +2 - 4 कितना होता है, -2 हो गया. एंड 2 4 कितना होता है, 2 × -4 -8 भी हो गया. तो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई. अभी हम यहाँ पे पहले हमारे पास कितने टर्म थे, यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स थे, 1 2 3. अब कितने हो गए, 4, 1 2 3 4. तो स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 का पेयर बनेगा. यहाँ पे से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे से क्या कॉमन निकलेगा, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x है, दोनों में एटलीस्ट 1 1 x है. तो एक x को कॉमन निकाल लेंगे. अब यहाँ पे से x कॉमन निकल गया, एक x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे एक x बचा. देन प्लस यहाँ पे इस 2x में से भी x कॉमन निकल गया, तो व्हाट इज़ गोइंग टू रिमेन हियर, ओनली 2, ठीक है. देन यहाँ पे ये दोनों टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस दोनों में. देन 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8. सो 4 कॉमन निकालते हैं. सो वी विल हैव व्हाट, यहाँ पे जो बचेगा वही सेम यहाँ पे आने वाला है, दैट इज x + 2 ओनली, x + 2, ओके. नाउ दिस x + 2 इन वन ब्रैकेट, ठीक है, एंड वॉट एवर रिमेनिंग आउटसाइड द ब्रैकेट विल बी इन अनदर ब्रैकेट, x - 4. सो व्हाट इज गोइंग टू रिमेन हियर, x + 2 x - 4. ये हमको क्या मिला, फैक्टराइजेशन मिला, किसका, x² - 2x - 8 का, ओके. नाउ हमको फाइंड आउट करना है पहले तो इसका ज़ीरो, यानी कि हमको चाहिए p of x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0 ऐसा चाहिए. वी वांट p of x इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज, वी गॉट p of x इज इक्वल टू दिस, एंड दिस वी गॉट एज x + 2 × x - 4. सो वी विल राइट हियर x + 2 × x - 4 is equals to 0. x + 2 × x - 4 is equal to 0. तो here it means that कि ये दोनों x + 2 और x - 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब वी विल गेट द आंसर एज इक्वल टू 0. अब कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक एटलीस्ट 0 हो. तो मतलब ये दोनों में से कोई एक डेफिनेटली 0 है. सो वी विल टेक दैट
कि या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको एक इक्वल टू 0 लिख लेंगे सेपरेटली, और या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ओके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब ये जो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस 2 है उसके साइड चेंज करते हैं, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, दिस प्लस 2 विल बिकम -2। सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -2, और वैसे ही यहाँ पे ये -4 इस तरफ आएगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू +4, सो विल गेट x इज इक्वल्स टू +4। सो वी विल गेट -2 and 4 are the two zeros, so that is we will write zeros of x square minus 2x minus 8 are -2 and 4। ओके, -2 and 4 ये जो है इस गिवन पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोस है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में या तो आप -2 रखो या तो आप 4 रख के सॉल्व करोगे अगर, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, नाउ हमने हाफ सम तो सॉल्व कर लिया, दो ज़ीरोस तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे हमको दो ज़ीरोस मिले हैं, वो है -2 and 4। व्हाट इज़ द टू रिजल्ट वी हैव फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज़, सो फर्स्ट वी हैव अल्फा प्लस बीटा। Alpha plus beta is equals to what we have, -b upon a, -b upon a। Now what is the value of alpha and beta here? अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई भी एक अल्फ़ा है और कोई भी एक बीटा है, दो ज़ीरोस यहाँ पे, एक अल्फ़ा ले लो एक को बीटा ले लो। तो यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे सपोज हम रखते हैं -2 प्लस बीटा के जगह पे आ गया 4। ओके, नाउ -b अपॉन a, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में b और e की वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज़ 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के पहले क्या है, -2, तो -2। एंड व्हाट इज़ c इज़ द कांस्टेंट टर्म, दैट इज़ -8। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम -b अपॉन a की, तो -b की वैल्यू, b इज़ -2, तो -2, ये वाला माइनस एज इट इज़, यहाँ पे b के जगह पे b की वैल्यू है -2, तो दो माइनस हो गया, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको, अपॉन a की वैल्यू है 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सॉल्व हो रहा है, -2 + 4 यानी कि 4 - 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर वाला माइनस ये अंदर वाला माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास बचा 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि फर्स्ट केस हमारे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। अब हम वैसे ही सेकंड वाला करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म वे में जा रहा हूँ, आप स्ट्रेट अपने बुक में लिखना, ठीक है। अब सेकंड वेरिफिकेशन इज़ फॉर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ओके, c अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, फ्रॉम दिस वी टू -2 as अल्फा, सो -2 मल्टीप्लाई व्हाट इज बीटा इज 4 is equal to c, what is c, -8 upon a is 1, so what is -2 into 4, -8, 2 4 the 8 and minus sign तो -8, and here what we have -8। यहाँ पे भी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे ऐसा लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड यहाँ पे भी क्या हमको मिला, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, हेंस हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया, यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। दो ज़ीरो पहले फाइंड आउट किए, ज़ीरो कैसे फाइंड आउट किए, फैक्टराइज करके, ठीक है। ज़ीरो फाइंड आउट करने के बाद उसके दो हमारे पास जो रिजल्ट है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, उसमें हमने वैल्यूज रखी। अल्फा बीटा क्या है, दो ज़ीरोस है। ओके, यहाँ पे आप अल्फा को 4 लो और बीटा को -2 लो तो भी नो प्रॉब्लम, आंसर आपका सेम ही आएगा, वेरिफिकेशन हो ही जाएगा। अगर आपका ज़ीरो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हो तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और इस तरह से दोनों को वेरीफाई करना रहेगा। ओके, एग्जाम में ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 4s square minus 4s plus 1, here the variable is s, so we'll do it similarly as we did the first one। p of x is equals to 4s square minus 4s
प्लस वन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस वन। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज़ 4, हमने यहाँ पे रफ में लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, द कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर, 1। ओके, इस वाले नंबर को इससे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 1 सा 4, ठीक है। सो हियर वी गॉट प्लस 4। नाउ किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस में आंसर कब आएगा, दो केस में आ सकते हैं, या तो दोनों नंबर प्लस प्लस वाले हो, जैसे कि 5 और 5, 5 5 था 25, ओके, 5 5 था 25। जब दोनों नंबर प्लस वाले थे तो आंसर में हमको पॉजिटिव ही मिला, ओके। या फिर दोनों ही नंबर नेगेटिव वाले हो, यानी कि सपोज -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, +25, तभी हमको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, मगर पॉजिटिव में कब आते हैं, जब दोनों ही प्लस वाले हो या दोनों ही माइनस वाले हो। तो यहाँ पे हमको 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4। बट अभी हमको मिडिल टर्म पे अगर ध्यान दे तो मिडिल टर्म पे हमको चाहिए -4, मिडिल टर्म में मेरे को चाहिए -4। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे +2 लेता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 तो आ जाएगा, मगर 2 + 2 क्या मिल रहा है मुझे, +4 चाहिए। बट यहाँ पे मिडिल टर्म में कौन सा 4 है, -4। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस एज -2 इंटू -2। व्हाट इज़ -2 -2 ज़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस वाले है तो क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके 4 ही आने वाला है, +4। मगर जब दोनों को ऐड करें दैट इज -2 तो क्या आएगा आंसर, -4। सो वी विल गेट हियर, व्हाट आई विल राइट हियर इज, दिस इज 4s स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, बट ये -4s को क्या लिखेंगे हम, -2s, ओके। -2s कितना हो गया, -4s हो गया, और ये 2 2 ज़ा दोनों माइनस वाले तो +4 भी हो गया, +1, ओके, +1। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में से कॉमन और ये दोनों में से कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं 4 and 2, एंड s इज़ कॉमन 1s कॉमन, तो यहाँ पे से 2 कॉमन निकला तो 2 बचा, एंड s स्क्वायर में से एक s निकल गया तो एक s बचा, ठीक है। देन दिस माइनस, यहाँ पे से ये पूरा 2s निकल चुका है कॉमन, राइट, यहाँ पे से 2s पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1, ओके। अब यहाँ पे ये माइनस कॉमन, और यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो चीज़ बचती है वही सेम चीज़, दैट इज 2s - 1 ओनली, ओके। सो ये हमारे पास आया। अब ये 2s - 1, ये 2s - 1 एक ब्रैकेट में, एंड जो बाकी बाहर है यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे बाकी जो बाहर दैट इज़ एक ब्रैकेट में, दैट इज़ अगेन 2s - 1 ओनली, ओके। दोनों ब्रैकेट में 2s - 1। नाउ एज वी डिड बिफोर, फॉर p of x is equals to 0, 2s - 1 is equals to 0, ओके, ये किया था। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज़ 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0, सेम थिंग। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, this 2s is equals to -1 will go that side, so we will get +1, same thing here, 2s is equals to +1। now this 2 will go down, यहाँ पे जो है 2 जो है s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, डिवाइड में, s इज इक्वल्स टू 1/2, एंड यहाँ पे भी s इज इक्वल्स टू 1/2 ही हमको मिलेगा। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर दैट zeros of 4s square minus 4s plus 1 ये जो पॉलिनोमियल है उसके कौन से जीरो है, 1/2 एंड 1/2 ओनली, दोनों ही 1/2 जीरोस है। तो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। सो वेरिफिकेशन, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों ही ज़ीरो सेम है, 1/2, इसको अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो, सेम ही चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, -b/2,
ए, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आप रफ में लिख लो पहले व्हाट इज़ ए, बी एंड सी आर। व्हाट इज़ ए ईयर फॉर दिस पॉलिनोमियल? ए इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज़ बी ईयर? बी यानी एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 एंड व्हाट इज सी? कांस्टेंट टर्म इज +1। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस द वैल्यू ऑफ बी इज -4, ओके, -4, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 4। What we will get here on the left side when we add half plus half, डिनोमिनेटर सेम है 2, तो ऊपर वाले को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 + 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 भी कट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? ओनली 1 बचेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे सब कुछ कैंसिल होकर 1 आ गया। यहाँ पे क्या होगा? 1 + 1 2 एंड 2/2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। दैट इज़ हमको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एक रिजल्ट हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब वैसे ही सेकंड करेंगे, दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ओके, ये फार्मूला याद रहो। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 is equal to c upon a. What is the value of c? c is 1 upon a. A is 4. What is 1/2 into 1/2? 1 1s are 1, 2 2s are 4. Left hand side and right hand side we got same, that is 1/4. LHS is equals to RHS. Hence यहाँ पे ये verified हो गया, हमने चेक कर लिया, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। Now solving out the third question. The third question is 6x square minus 3 minus 7x. So when we observe this question carefully, what we conclude here is that कि यहाँ पे 6x square minus 3 minus 7x जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में होता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि जो वेरिएबल के साथ नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज़ ईयर -3, जो यहाँ पे मिडल में है, नॉट एट द एंड। तो फर्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे ये बन जाता है कि हम पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये पॉलिनोमियल है दैट इज़ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको जो है हम सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में रखेंगे। डेट इज़ वी विल 6x स्क्वायर अपने प्लेस पे फाइन है, देन इसके बाद जो है -7x पहले आना चाहिए, फिर इन द एंड विल कम द -3। सो इस -7x को आगे लिखेंगे एंड आफ्टर डेट विल कम दिस -3, ओके। तो अब यहाँ पे हमने जो है इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको ए बी एंड सी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम ए बी एंड सी लिख लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे लिख लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 6, व्हाट इज b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू 6 द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज हियर व्हाट इज इट -7 एंड व्हाट इज c इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। सो नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने वाले हैं। सो 6 इंटू -3, ओके, द फर्स्ट टर्म्स कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, दैट इज 6 इंटू -3 वी विल गेट -18। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट 6 3 18। अभी हमको -18 चाहिए, एक प्लस और एक माइनस वाला होगा, राइट। और हमको मिडिल टर्म में क्या चाहिए? -7। एक तो 6 3 18 है और एक है 9 2 18, ओके, 9 2 18, 9 2 18 हो रहा है और 9 - 2 7 भी होता है, 9 - 2 7 भी होता है, बट हमको चाहिए -7, ओके। सो व्हाट वी कैन डू? -9 + 2, -9 + 2 इज हाउ मच? -9 + 2 इज -7 and -9 into +2 is -18. So we will write here 6x square and we will split this -7x as -9x + 2x, -9x + 2x, or you can write it as 2x - 9x, both are the same thing, and this will be -3 here, right? Now
We are having 4 terms now. This is the first 2 and this is the second one pair. Now we'll remove common from these 2 terms. क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे? 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 दोनों में से कॉमन निकला, दोनों में x है तो एक x कॉमन निकला. ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 3 निकल गया है, 3 वॉट ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 x थे, 2 में से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से 3 और x कॉमन निकला, 3 के टेबल में 9 का बाद है, 3 3 ज़ा 9, सो 3 एंड यहाँ पे अब प्लस दिस नथिंग इज रिमूविंग कॉमन, तो 1 कॉमन निकलेगा और ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में आएगी, इट इज़ 2x माइनस 3. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकला, मतलब 1 कॉमन निकला, राइट. सो अब यहाँ पे भी 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3. ओके, एंड इन द अदर ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग आउटसाइड द ब्रैकेट? 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1. ठीक है. Now we got the factorization of 6x square minus 3 minus 7x, right? Now what we do for p of x is equals to 0, we take this polynomial is equal to 0, right? That is 2x minus 3 and 3x plus 1 is equal to 0. दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा. ओके, तो मतलब यहाँ पे 2x minus 3 is equals to 0 और दिस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 सेपरेट कर दिया. अब ये माइनस 3 इस तरफ आएगा, यहाँ पे ये प्लस 1 इस तरफ आएगा, सो वी विल हैव 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 विल गो दैट साइड, सो दिस विल बिकम प्लस 3 और हियर 3x इज इक्वल्स टू दिस प्लस 1 विल गो दैट साइड, सो वी विल हैव माइनस 1. ओके, नाउ 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो यहाँ पे इसमें से क्या मिलेगा हमको? 2x इज इक्वल टू 3 में से वी विल हैव 2 विल गो दैट साइड, 2 इज हियर इन द मल्टीप्लिकेशन, दिस 2 विल कम दिस साइड एंड वी विल हैव x इज इक्वल्स टू 3/2, one of the 0 और another is x is equals to minus 1/3. So these are the 2 zeros of this polynomial. So therefore we'll write zeros of 6x square minus 3 minus 7x are 3/2 and minus 1/3. Okay, zeros find हो गए, मतलब half sum completed. Now we will do the verification. So now verification for first result, it is alpha plus beta. Okay, let this is be alpha and this is the beta. Okay, and what is alpha plus beta is equals to for quadratic polynomial? That is minus b upon a. Okay, don't forget this, just remember this by solving it. Alpha plus beta, what is alpha here? Alpha is 3/2. What is beta here? Minus 1/3 is equals to minus the value of b. What is the value of b? Is minus 7. So in bracket minus 7 upon what is the value of a? A is 6. ओके, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे से वैल्यू रख के अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू this minus minus is going to be cancelled. Okay, we will have 7/6 on the right side. This is solved here. Now let's see if the left hand side also is 7/6 or not. So here we'll do, here the denominators are not same, so cross multiplication. 3 3s are 3 3s are 9, 2 1s are 2 1s are 2, here is minus, so minus 2, 9 minus 2 upon this denominators multiplication. 2 3s are 6, so this is 7/6. So what is 9 minus 2 is? 9 minus 2 is 7. 7/6 is equals to 7/6. We got LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS. So this first verification is done. Now the second one, it is alpha beta is equal to C upon A, that you have to try and check whether it is correct or not. You have to verify it. Okay. Now the fourth question is 4u square plus 8u. Here we have to find the zeros and again we have to verify. So 4u square plus 8u, we will take this as p of x is equals to 4u
square plus 8u. Here we are having only two terms in this quadratic polynomial. So what we will do is we will see that if we can remove something common from this or not. इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में से, दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन निकलेगा, दोनों के पास u है तो u कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से 4 और u कॉमन निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल u, प्लस यहाँ से 4 और u कॉमन निकल गया तो 4 के टेबल में 8 का बात है, 4 2 जा, u तो कॉमन निकल गया, ठीक है। तो u + 2 बचा। सो विल टेक दिस एज 0 फॉर p of x is equal to 0. Therefore p of x value is 4u into u plus 2 is equals to 0. 4u into u plus 2 is equal to 0. Now we'll take this separate as we did in the last sums, few sums, that is 4u is equal to 0. ओके, ये 4u को इक्वल टू 0 क्योंकि ये 4u और u plus 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 4u is equal to 0 और u plus 2 is equals to 0. Okay, so what we will get here, this 4 will come this side and we will have u is equal to 0 by 4 or u is equals to plus 2 will go that side, we'll have minus 2. So 0 by 4 is what? 0 by 4 is 0. U is equal to 0 or u is equals to minus 2 are the two zeros of this polynomial. Therefore zeros of 4u square plus 8u are 0 and minus 2. 0 and minus 2. 0 and minus 2 are the two zeros of this polynomial. Now the whole verification of this sum you will do. Here what is a will be, a is equals to, the coefficient of u square is 4, b is equals to 8 and c, that is a constant term, there is no constant term here, that is c is equal to 0. So with the help of this and the help of the two zeros, that is alpha and beta, you will verify the relationship between zeros and coefficient for this sum. Okay, now we are going for the next sum. So the next question is t square minus 15. So here the p of x is t square minus 15, the variable is t. Okay, so here, so what we will write here, that for p of x is equal to 0, what is the value of p of x is t square minus 15. So t square minus 15 is equal to 0. t square minus 15 is equal to 0. तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये minus 15 जो है कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t square is equals to minus 15 will become plus 15. t square is equals to plus 15, minus 15 will came this side. Now we have to remove this square here, so we'll both side do the square root. Now we have to remove the square from this t, तो हमको दोनों तरफ यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दिस विल बी t square and root 15. So this root and square cancel, so we will have t this side, इस तरफ से t बचा सिर्फ हमारे पास, और रूट 15 यानी 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 का स्क्वायर रूट होगा या तो प्लस या तो माइनस 15. ओके, क्योंकि अगर आप किसी प्लस का स्क्वायर करते तो भी आपको आंसर प्लस में ही मिलेगा, या किसी नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी आपको उसका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा. देखो जैसे कि मतलब कि आप 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा आंसर 4, और -2 का स्क्वायर करो तो भी माइनस माइनस वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +4 ही आएगा आंसर. तो यानी यहाँ पे ये जो रूट 15 है, 15 का जो रूट है वो प्लस वाला रूट 15 भी हो सकता है या माइनस वाला रूट 15 भी हो सकता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे प्लस और माइनस रूट 15 आया. सो दैट इज़ t इज इक्वल्स टू रूट 15 प्लस वाला, या फिर t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15. ये दो जो है वो ज़ीरोस है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के. सो वी विल राइट हियर देयरफॉर ज़ीरोस ऑफ t square minus 15 are root 15 and minus root 15. Okay, root 15 and minus root 15 are the zeros of this polynomial. Now we'll do the verification. So verification is first alpha plus beta minus b upon a. Alpha plus beta is equals to minus b upon a.
let's substitute the value alpha, let any be the alpha and beta. alpha इसको ले लो √15 alpha, okay, plus beta is minus √15, so bracket में minus √15 is equals to minus b is here in this polynomial. our a is equals to the coefficient of t square. t square के आगे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कोएफिशिएंट t स्क्वायर के आगे नथिंग इज दैट, मीन्स a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू t का कोएफिशिएंट, यहाँ पे t है, t नहीं है, सिंगल t नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t इज 0. एंड व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म इज -15. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड a here. b is 0 upon what is the value of a is equals to 1. What is going to happen here? The bracket will open, √15 plus minus minus √15 is equal to 0 by 1, 0, √15 minus √15 both cancel, and we will have 0 is equals to 0. It is left hand side is equals to right hand side. Okay, now similarly we will go for the second one, that is alpha beta multiplication. Alpha beta is equals to c by a. What is alpha? Alpha is √15 multiplied by minus √15. c is -15, a is 1. √15 into √15, the root will be cancelled, and this is plus √15, this is minus √15, so plus minus minus. Okay, √15 into √15, 15, minus 15, and what is minus 15 by 1? Minus 15. Left hand side is equals to right hand side. So this is also verified here, hence verified. So यहाँ पे ये सम भी कंप्लीट हो गया. तो बहुत ही इजी है ये, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं. आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं एज वेल एज आपको उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x³ minus x minus 4. दैट इज़ होमवर्क फॉर यू, दैट यू विल डू 3x² minus x minus 4. ओके, सेम वे में, कुछ इसमें अलग नया नहीं है. Now going for the second question, now going for the next question, that is question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. हमको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ओके, हमको क्या दिया हुआ है उसके लिए, फॉर द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. मतलब 2 नंबर जो हमको दिए हर एक क्वेश्चन में, उसमें से एक जो है जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है, उसके ज़ीरोज़ के सम दिए हैं. ओके, सम दिया है और एक प्रोडक्ट दिया है. ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर वाइज, मतलब जो फर्स्ट नंबर है डेट इज़ आर सम एंड द सेकंड नंबर इज़ आर प्रोडक्ट. ओके, सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ गिवन, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ये, और ये क्या दिया है हमको, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो, और इसकी मदद से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ठीक है. So starting the first solution, first number which we are having is the sum of the zeros, and this is the product. Sum means it is alpha plus beta, and what is the value of alpha plus beta is equals to, we have the formula alpha plus beta is equals to minus b upon a. Okay, और हमको क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या वैल्यू है, 1/4. दिस इज द वैल्यू ऑफ alpha plus beta, and this is what, this is the product of the zeros. So that is alpha beta, and what is the formula of alpha beta is equal to c upon a. What is this value of alpha beta is, here is -1. ठीक है, -1. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे हम उसको, यहाँ पे फिलहाल हम 1 कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे इस चीज़ से हमको मिलेगा द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ c. और a b c अगर मिल जाता है हमको, a b और c की वैल्यू, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमको ए बी और सी में से सबसे पहली चीज़ मिलने वाली है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए. कैसे कि अगर हम ये जो इतना जो चीज़ है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे -b अपॉन ए है, यहाँ पे c अपॉन ए है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वी कैन सी डेट दोनों में ही a जो है वो दोनों में ही है. सो फ्रॉम दिस टू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट. सो if a is equals to, what is the value of a here, तो
यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते तो डिनोमिनेटर में a इज इक्वल्स टू ईयर 4, a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे से हम कौन सा चूज़ करें, a की वैल्यू 4 या a की वैल्यू 1। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि द बिगर वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ a। ओके, 4 और 1 में जो बड़ी वैल्यू होगी दैट इज, तो व्हाट इज द बिगर वैल्यू ईयर 4। सो a इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 4, a की वैल्यू हमको मिल गई 4। तो इसके बाद हमको b और c भी मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो a की जगह पे अब a की वैल्यू जो है वो रख दो, माइनस बी अपॉन ए की जगह पे a की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट इज ईयर 1 अपॉन 4। ओके, नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। सो दोनों में डिनोमिनेटर में 4 4 है तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव इज माइनस b इज इक्वल्स टू 1, सेंड दिस माइनस दैट साइड, सो दिस विल बिकम b इज इक्वल्स टू -1। ओके, यहाँ से माइनस वहाँ भेज देंगे तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड वी विल गेट b इज इक्वल्स टू -1। तो b की वैल्यू भी मिल गई और उसी तरह से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंड जैसे यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया था, अब ये यूज़ करेंगे c अपॉन a। तो c अपॉन a की वैल्यू इज़ 4 इज इक्वल्स टू व्हाट डू वी हैव हियर -1। अब यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 4 है, अब c वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो 4 विल गो दैट साइड। सो व्हाट वी विल हैव इज c इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 -4। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a b c की हमको वैल्यू मिल गई है। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, वो यूज़ करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बनाएंगे। सो देयरफॉर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज वी हैव p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो a b और c की। सो नाउ यहाँ पे a की वैल्यू इज 4, सो 4 देन दिस x² देन प्लस, नाउ b की वैल्यू इज -1, सो विल राइट इट इन ब्रैकेट -1 देन x then plus c, the value of c is -4, so here will come -4. So now opening the bracket we will have this 4x² plus minus 1x, तो हम 1 नहीं लिखते, simply x and plus minus again minus and this 4. So this is our required quadratic polynomial, this is our answer is, okay, इस तरह से हम find out करेंगे। Now second question is √2 1/3। So solving this, यहाँ पे हमारा जो सम है वो √2 है और प्रोडक्ट है 1/3 है। सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज माइनस b अपॉन a एंड व्हाट इज गिवन हियर इज √2, नथिंग इज देयर बिलो, दैट मीन्स देयर इज 1 डिनोमिनेटर, जैसे फर्स्ट सम में किया। नाउ प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a एंड व्हाट इज गिवन हियर इज 1/3। ओके, नाउ इफ़ सबसे पहले हमको a की वैल्यू मिलेगी, कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, ग्रेटर नंबर इज 3, सो वी गेट a इज इक्वल्स टू 3। ओके, देन दिस थिंग वी विल यूज, दैट इज माइनस b अपॉन a की जगह पे a की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू √2। यहाँ पे अब 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है, दिस 3 विल गो दैट साइड, सो वी विल हैव माइनस b इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2, okay, and this minus is here, so we'll take that minus that side, so we will have b is equals to -3√2, okay, -3√2, 3 into √2, 3√2, this minus we are sending that side, so we get b is equals to -3√2, and similarly we will have c upon a is 1/3, a की जगह पे a की वैल्यू is 3 and here is 1/3, दोनों तरफ से c 3 कैंसिल, वी विल हैव c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमको c मिल गया, a b c तीनों मिल चुके हैं। सो आंसर p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, कंपेयर इट, a की जगह पे a की वैल्यू 3 x² प्लस b की जगह पे b की वैल्यू -3√2 -3√2x प्लस c की जगह पे c की वैल्यू 1। दिस विल ओपन दिस ब्रैकेट, सो वी विल हैव 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज।
3x square minus 3 root 2x plus 1 is the required polynomial. Now the third one is 0 and root 5. Solution. What is alpha plus beta? That is minus b upon a is equals to here 0 and that is 0 upon 1, and alpha beta is equals to c upon a, and that is root 5 upon 1. Okay, so if फर्स्ट ऑफ ऑल a क्या मिलेगा, a दोनों जगह पे 1 ही है, सेम ही वैल्यू है, तो a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, देन माइनस बी अपॉन ए के जगह पे a की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, minus b is equals to this 1 will go that side, 1 zeros are 0 and we will have b is equals to 0, because if we send the minus that side, minus 0 तो होता नहीं है, 0 is neither positive nor negative, so b is equals to we got 0. And similarly the last one, c upon a की value 1 is equals to c upon a we have root 5, so we will have c is equals to root 5. ओके, ए बी सी तीनों मिल गया. जस्ट सब्सटीट्यूट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आंसर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, वैल्यू ऑफ ए इज 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी, वैल्यू ऑफ बी इज 0, so 0x plus value of c is root 5, so root 5. Okay, so 1x square means only x square and 0 into anything means 0. This is going to be 0, this is not going to be written here. Okay, हम 0 है तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली तो ये टर्म यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमारे पास डायरेक्टली बचा रूट 5. सो x square plus root 5 is the required quadratic polynomial that we were supposed to find. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हुआ. Now the fourth, fifth and sixth sum you have to do by own for your self task, because there is nothing new in that three sum. In the same way as we did here in the three sums, the same way you will do that, and you will definitely solve it in a very short time, in very easy way. And I hope this is understood now. So here we completed exercise 2.2. In the next class we will start exercise 2.3 and we will end the chapter there. Okay, so till that time, stay home, stay safe and take care. Bye.